was also a normal, typical electrical engineer, right? And the thing is that every my friends, right? My friends is doing 10,000, 20,000 rupees job, and that time I don't do job. मतलब मुझे नहीं job करनी थी. I want to learn stock market. So my friends is doing job. उस time पे मैं stock market सीख रहा था and all this. And I know the potential, right, of the market, because I met so many successful traders, so that I know that yeah, after you learn stock market and you become a profitable in stock market, after that your life is completely changed, right? It means better food, travel, lifestyle you want, जो भी आपको चाहिए होता है ना, वो if you become a profitable, उसके बाद सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है. Making money, right? It's easy for you from any time, anywhere, right? I'm traveling to Mumbai, Bangalore, Delhi, Gurgaon, Kolkata, right? Ahmedabad, right? And I just carry one laptop, right? And I don't care about the money. I don't think about the money, right? It's easy because now I know the skills how to make money. How many people feel, how many people wants this types of lifestyle? How many people wants to get out of their job, right? How many people want to do that? Ronak says me, Surju says me, Shivardhan says me, Shayad Abdul Rahman says me, everyone. Very good, right? If you attend today's class, right, you're 80%, right, 80% far away from others, right? मतलब आप लोगों से, दूसरे लोगों से 80% जितने लोग हैं ना, उससे आगे बढ़ जाओगे. बिकॉज मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, जो भी मैंने खुद से करा हुआ ना, वो सारी चीजें बताऊंगा. सो अब नाउ डोंट, अब मैं और ज्यादा टाइम आप सभी लोगों का वो नहीं करूंगा. एंड लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास, राइट? सो मैं कौन हूं और क्या, क्यों ये क्लास कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एंड क्यों आप सभी लोगों को जो है मुझे सुनना चाहिए. So the thing is that my name is Darshan Rathod. How many people already know me? Right? How many people already know me? Right? So my company is managing more than 50 crore rupees of funds. As of now is 70 crores. Right? So I just have to change the slide. And currently I'm the director and chief operating officer of the company Multify. And I'm a systematic trader from last more than 9+ years. I have a 9 years of experience and I trained more than 3,000 plus students. Right? अभी मेरे इतने इतने स्टूडेंट्स हो गए, राइट? So they are making, someone making 1 lakh, someone making 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh. एंड एवरी डे मैं जब वो लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ, राइट, कि सर जस्ट बिकॉज ऑफ यू माई लाइफ इज चेंज, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई बॉट दिस हाउस, आई एम ट्रैवलिंग विथ माई फैमिली एंड ऑल दिस, आई फील सो ब्लेस्ड. आई फील सो ब्लेस्ड कि मैंने सीखा, अब मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ मेरा नॉलेज. एंड द थिंग इज दैट माई मेन बिजनेस इज टू मैनेज मनी, राइट? अभी हम अराउंड अराउंड 60 to 70 करोड़ रुपीज जो है वो मैनेज कर रहे हैं लोगों का. ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको कोई कोर्स बेचने आया हूँ एंड लास्ट में आपको कोई चीज बेची नहीं जाएगी. दैट्स माय प्रॉमिस टू यू. क्योंकि आजकल आपने देखा होगा लोग वेबिनार करते हैं एंड लास्ट में आपको कोई कोर्स बेच देते हैं, राइट? बट लास्ट में कुछ नहीं बेचा जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? कुछ भी नहीं. इफ यू आर एट सर्टन लेवल, देन मैं आपको एक चांस दूंगा 1-to-1 कॉल करने की मेरे साथ, राइट? मतलब यू गेट वन चांस टू कनेक्ट with me on 1-to-1, right? So there are only few traders in India, right? That are managing this much of money. How many people know, कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो अभी 50 करोड़ से ज्यादा का फंड संभाल रहे हैं? कितने लोगों को जानते हो आप जो 50 करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज कर रहे हैं? यस, यस. डोंट नो, राइट? मतलब आप जितने भी लोगों को जानते हो, जो भी लोग सिखाते हैं, दे आर डूइंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इस तरीके से, राइट? They are actually profitable or not profitable, you don't know. But today I will share the profit and loss, everything, so that आपको जो है ज्यादा चीजें समझ में आ जाए. अब मेरी कंपनी की जो भी करंट वैल्यूएशन है, दैट इज 250 करोड़, राइट? आई एम मेकिंग इनफ मनी एंड नाउ आई एम एट दिस लेवल की अब मुझे जो चाहिए था ना मेरी लाइफ में, वो मुझे सब मिल चुका है. एंड अभी मेरे कुछ ही गोल्स है. नाउ माय गोल इज टू सर्व द ह्यूमैनिटी, राइट? कि मैंने एक एक स्टेज के ऊपर मैं पहुंचा हूं, तो अब मैं वही चीज लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, वही मेरा जो नॉलेज है, जो मैंने इतने अलग अलग मेंटर से सीखा है, वो कैसे लोगों तक पहुंचाऊं. तो नाउ माय गोल इज दैट
तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड न्यू स्टार्टअप, इट्स कॉल्ड आई लर्न, कि जहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं। एंड ये यहाँ पे आप देख सकते हो, आई केम इन CNBC ऑल्सो, राइट। डिफरेंट डिफरेंट और भी चैनल्स है, जैसे न्यूज कैपिटल है, वहां पे भी मेरे शोज होते हैं रेगुलर। एंड राइट, वी आर सेबी रजिस्टर्ड, वी हैव दिस कंपनी लेवल लाइसेंस। एंड ये मेरे मेंटर्स हैं कि जिसके पास से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। And right now I'm working with Rachit Chawla ji. He is a billionaire, and I'm currently, I have a privilege that कि अभी मैं रचित जी के अंदर वर्क कर रहा हूँ, and मतलब मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सर के साथ। सो I am completely blessed, right? Thank you so much everyone for the love, support, everything, right? All my gurus, mentors. Yes, let's start. So अब और बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं करते, बट स्टार्ट करते। So the first step is that ki how to become a profitable, right? The how to become a profitable. There are 10 steps to become profitable. First is कि आपके आपके जो बेसिक्स हैं, राइट, स्टॉक मार्केट के, वो क्लियर होने चाहिए। अब बेसिक्स का मतलब क्या है? बेसिक्स मतलब यू नो स्टॉक मार्केट है क्या, शेयर्स क्या होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, राइट, कैंडलस्टिक्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, जो बेसिक्स होता है मार्केट का, राइट, ब्रोकर्स क्या होते हैं, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, सेबी क्या है, राइट, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या है, ये सारी चीजें आपको, जो बेसिक्स है, जो फाउंडेशन है, ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो इट्स कॉल्ड बेसिक्स, कि आपका वहां पे जो ग्राउंड है वो सेट हो जाएगा। तो आपको अभी ये जज करना है कि ये 10 चीजों में से आप अभी किस लेवल के ऊपर हो। इफ यू आर एट लेवल 1, टाइप 1, इफ यू आर एट लेवल 2, टाइप 2, इफ यू आर एट लेवल 3, टाइप 3, इफ यू आर लेवल 4, देन टाइप 4। तो दिस इज, ये जो आज की क्लास है ये दोनों के लिए है। यहाँ पे बेसिक से भी बात होगी और एडवांस भी बात होगी। तो जो भी लोग एडवांस ट्रेड कर रहे हैं अभी, कि जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ना, जिसने ये ऑलरेडी ये सारी बातें सुन चुके हैं, तो वो प्लीज वो एग्जिट मत करना। फिफ्थ पॉइंट के बाद सारी एडवांस बातें होने वाली, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड मैं आपको मेरी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है, जो मैंने बनाई है, एंड जिसको मैं ट्रेड करता था इक्विटी पे, एंड जस्ट यू हैव टू स्पेंड 2 to 3 minutes इन अ डे, एंड आपका जो ट्रेडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा उस स्ट्रैटेजी से। तो कितने लोगों को वो स्ट्रैटेजी जाननी है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यस, 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 1 1 1 5, वेरी गुड, गुड 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 गुड, डन। सेकेंड स्टेज इज लर्न इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। अब इसका मतलब क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विटी मार्केट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव मार्केट का मतलब क्या है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, इक्विटी मार्केट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक सिंपल चीजें से समझते हैं। जैसे ये कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स हैं। अब आप जैसे यहाँ पे इट्स द इक्विटी मार्केट, अब यहाँ पे एक शेयर भी खरीद सकते हो, दो शेयर भी खरीद सकते हो, तीन शेयर भी खरीद सकते हो, चार शेयर भी खरीद सकते हो। इक्विटी मार्केट का मतलब ये है रिटेल मार्केट्स, कि जहां पे आपके मर्जी के हिसाब से आप शेयर्स को खरीद सकते हो। मतलब उसके लिए आपके डीमेट अकाउंट में कैपिटल होना चाहिए। आपको एक शेयर खरीदना है, आप एक शेयर खरीद सकते हो। इट्स सिमिलर लाइक जो सब्जी वाला आता है ना आपके आपके सोसाइटी में, तो उसके पास से आप क्या करते हो, कभी एक आलू ले लेते हो, कभी टमाटर थोड़े से ले लेते हो, राइट। तो इट्स लाइक अ इक्विटी मार्केट, इसे कैश मार्केट भी बोलते हैं। अब क्या करते हैं, देखो कोटक फ्यूचर्स देखते हैं। कोटक, एक सेकेंड। जब आप कोटक पे जाते हो तो फ्यूचर्स का मतलब, अब ये हो गया डेरिवेटिव्स मार्केट। अब डेरिवेटिव मार्केट पे जैसे ही आप बाय करते हो ना, यहाँ पे 400 क्वांटिटीज फिक्स। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पे आप जो है 400 से कम क्वांटिटी में बाय या सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे लॉट साइज जो है वो फिक्स है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बिग मार्केटिंग यार्ड। कि जहां पे क्या है कि होलसेल मार्केट है, जहां पे आप एक आलू 2 केजी आलू नहीं खरीद सकते, वहां पे आपको कंपलसरी जो है 10 केजी खरीदना पड़ेगा, 20 केजी खरीदना पड़ेगा, राइट। तो ये होलसेल मार्केट है, जो डेरिवेटिव्स मार्केट होता है वो। एंड जो इक्विटी मार्केट है, इट्स बेसिकली अ रिटेल मार्केट, कि जहां पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से खरीद सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप इज टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल मतलब क्या हुआ, कितने लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है? टाइप yes in the chat box, type me in the chat box if you know about the technicals, type me in the chat box।
मी मी मी। देख, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली है क्या? टेक्निकल एनालिसिस का जो लास्ट लॉजिक है वो ये बताता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कि हिस्ट्री में जो भी चीजें हो चुकी है, पास्ट में जो भी चीजें हो चुकी है, वही चीजें आगे होने की संभावना है। बट अब उसको टेक्निकल वे में बताए कि प्राइस के साथ जो भी चीज, प्राइस जैसे प्राइस ने प्रीवियस जैसे बिहेवियर कर दिया है, वैसे ही बिहेवियर आगे भी होने वाला है। अब इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ये कहता है, जैसे समझ लो आपका एक दोस्त है, उसका नाम है श्याम, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप 5 साल से उसके साथ हो। अब आपको पता है कि यार श्याम को खाने में क्या तीखा पसंद है, मीठा पसंद है, शाम 10 बजे सो जाता है। तो आपने, आप उसके साथ 10 साल रहे, अब आपको पता है यार कि श्याम का बिहेवियर क्या है। अब अगर आपको कोई आके आपके साथ बेट करे कि श्याम आज 2 बजे सोएगा, और आपको ऑलरेडी पता है कि यार श्याम तो 10 बजे सोता है, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है जो बढ़ गई, क्योंकि यार आपको ऑलरेडी पता है, आपने देखा कि ये पास्ट में भी ऐसा हुआ है, तो आगे भी ऐसा होने की संभावना है। तो इसे बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो वहां पे आप अगर बेट करते हैं तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? तो यही है सिंपल टेक्निकल एनालिसिस, कि जो पास्ट में हो चुका है, आपने वो पैटर्न्स, वो चार्ट्स, वो इंडिकेटर्स, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करा, एंड फिर देखा कि यार आगे भी ऐसा हो सकता है। तो आपने सिंपल क्या करा कि इसके लिए आपने एक बेट ली जहां पे आपका रिस्क लिमिटेड है बट आपका रिवॉर्ड उससे बड़ा है। ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का एंड गोल होता है आपको बताने का। अब टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे देखते हो? देखो, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले कैंडल स्टिक्स आती, ये सारी कैंडल स्टिक्स है। दूसरा उस पे टाइम फ्रेम आता है, राइट, कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइम की कैंडल स्टिक्स देख सकते हो। कैंडल स्टिक्स बेसिकली आपको 4 तरीके के प्राइस दिखाता है: ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन मतलब आज जिस प्राइस के ऊपर भाव ओपन हुआ है वो। हाई मतलब आज का सबसे हाईएस्ट ऊपर जाने वाला प्राइस। लो का मतलब ये होता है आज का सबसे नीचे जाने वाला प्राइस। एंड क्लोज का मतलब ये होता है कि मार्केट बंद होते होते आज प्राइस क्या रहा। तो ये 4 तरीके की जो प्राइस है वो बेसिकली आपको कैंडलस्टिक्स दिखाती है। आप किसी भी कैंडलस्टिक्स के ऊपर जब हवर करते हो तब ग्रीन कैंडलस्टिक्स आपको बेसिकली ये दिखाता है कि ओपनिंग से प्राइस जो है वो ऊपर गई है। रेड कैंडलस्टिक्स बेसिकली आपको ये दिखाता है ओपनिंग से प्राइस नीचे आई है। यहाँ पे कैंडलस्टिक्स है जो ये सारी चीजें प्राइस बेसिकली आपको दिखाती है, टाइम फ्रेम है। एंड यहाँ पे बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली आपको ये बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी। अब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस शेयर करते हैं। कोई मोमेंटम शेयर करता है, कोई मतलब आपको डायरेक्शन शेयर करता है, कोई ये बताता है कि एवरेज क्या है प्राइस का। कितने लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं? आप सभी लोगों का फेवरेट इंडिकेटर क्या है? यस, कितने लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं? कितने लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं? एंड आप सभी लोगों का फेवरेट इंडिकेटर क्या है? यस, ईएमए। यस यस यस। अब मैं आपको अगर एक चीज बताऊं कि इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते, तो आपका उस पे कितना बिलीफ है? आप कितने प्रतिशत लोग जो है जो मानते हैं कि यार इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते, राइट? इंडिकेटर्स आपको लेट सिग्नल देते हैं, राइट? अब दूसरा, लोग ऐसे हैं कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब देखो, आप एक टास्क करो आज, आप आंख अपनी बंद कर लो और कहीं पे भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ट्राई करो, राइट? ऐसे ऐसे आप कर दो, आप आंख बंद करके कहीं पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो। अब ये बेसिकली आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। आपको एक चीज सोचने की, क्या यार मार्केट के कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या? क्या मार्केट ने कभी आपको बताया कि मेरे ये सपोर्ट्स है या मेरे ये रेजिस्टेंस है? बेसिकली प्राइस जहां पे ज्यादा वेट करता है उसको आप सपोर्ट मान लेते हो, प्राइस जहां ऊपर से रिवर्स करता है आप उसको एक रेजिस्टेंस मान लेते हो। बट ये बेसिकली आपके मिथ्स है। कभी मार्केट ने आपको बताया कि इंडिकेटर्स आपको बताएंगे कि मैं यहां से ऊपर जाने वाली हूँ या मैं यहां से नीचे जाने वाली हूँ? यस, कितने लोगों का दिमाग ओपन हो रहा है, कितने लोगों का बल्ब ऑन मूवमेंट्स आ रहा है, राइट? बिकॉज मार्केट ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करता है। मार्केट्स डोंट नो अबाउट यू, not about your capital, how much knowledge you have, where are you from, and which quantity are you trading। आपके बारे में कुछ नहीं जानता, स्क्रीन के पीछे कौन बैठा है कुछ नहीं पता, बट मार्केट एक बिहेवियर को फॉलो करता है। दे नो वन थिंग,
And there is two types of people in the stock market. One is strong hands, second is weak hands. स्ट्रॉन्ग हैंड्स बेसिकली मार्केट में बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करते हैं. वीक हैंड्स क्या करते हैं, ट्रेड लेने के बाद एक छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं, मार्केट नीचे आता है, एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. वीक हैंड्स एवरी टाइम थोड़ा 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 कमा के एग्जिट कर देते हैं. कितने लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट, कि यार सर जब भी प्रॉफिट होता है ना छोटा छोटा होता है और बाकी फिर एग्जिट हो जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है. सो वो सभी लोगों के लिए मैं आज एक मेरी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसपे ना आपको कोई इंडिकेटर्स यूज करना है, ना कोई सपोर्ट यूज करना है, ना कोई रेजिस्टेंस यूज करना है, कुछ नहीं करना है, राइट. जस्ट 2 to 3 minutes आपको स्पेंड करने देंगे एंड आपका ट्रेडिंग कंप्लीट, एंड इन दैट आल्सो यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी. यस, 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 वेरी गुड. अब टेक्निकल एनालिसिस ये हो गया. अब कितने लोग ये मानते हैं कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल्स ये सारी चीजें वर्क नहीं करती, प्राइस एक्शन वर्क करता है. कितने लोग ये मानते हैं कि प्राइस एक्शन वर्क्स बेस्ट? Type me in the chat box. If you feel price action works, then type me in the chat box. OI data, yes, 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 very good. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस पे. अब फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो कोई एक घर है, तो घर के जो अंदर चीजें चल रही है वो फंडामेंटल एनालिसिस है, एंड घर बाहर से कैसा दिखता है वो एक टेक्निकल एनालिसिस है. अब इसका मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जैसे समझ लो आप बाहर से फिट दिख रहे हो, बहुत ज्यादा फिट, तो इट मींस ये आपका टेक्निकल एनालिसिस है कि आप बाहर से कैसे दिख रहे हो. अब अगर आप बाहर से फिट दिख रहे हो तो इसका सिंपल मतलब ये कि यार आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, राइट, आप हेल्दी हो, आपकी सारी चीजें जो है वो अलाइन है, राइट. तो ये बेसिकली आपका फंडामेंटल एनालिसिस हो गया कि आपके लिवर, आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके आईज, आपके ईयर्स, एवरीथिंग वर्क्स वेल, राइट. तो ये आपका फंडामेंटल एनालिसिस है. अब बाहर से आप कैसे दिख रहे हो ये आपका बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस हो. तो जब फंडामेंटल एनालिसिस खराब हो जाता है तो टेक्निकल एनालिसिस ऑटोमेटिकली खराब होगा, राइट. तो ये इस तरीके से सिंक होता है. जैसे कोई कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि यार कंपनी क्या काम करती है, कंपनी ने प्रीवियस ईयर कितना ग्रोथ करा था, कंपनी का पी रेशियो क्या है, राइट, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी के पास कितना एसेट्स है, मतलब कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, गवर्नमेंट किस तरीके से ये कंपनी को सपोर्ट करती है, कंपनी के जो प्रोडक्शन सर्विसेज हैं, राइट, वो कैसे हैं, उस कस्टमर्स के रिव्यूज क्या है. ये सारी चीजें बेसिकली आपको जो है फंडामेंटल एनालिसिस बताता है. एंड ये सारी चीजें अच्छी होने की वजह से जो प्राइस में ग्रोथ आती है उसको वो आपको टेक्निकल एनालिसिस बताता है. अब हम एडवांस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं. ये सारी चीजें हमने सीख ली. अब हम सीखते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग. इससे पहले हमने बेसिक सारी चीजें क्लियर करी और बहुत सारी चीजें और सीखी. अब सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है क्या? देखो, सिंपल चीज, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रेड करते हो और आपके ट्रेडिंग के रूल्स फिक्स है, उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक वे ऑफ ट्रेडिंग. जब भी आप ट्रेड करने जाते हो और आपके ट्रेडिंग के रूल्स फिक्स हैं, मतलब कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, जब आपके पास, और कहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, जो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है उसके आपके पास जब रूल्स फिक्स होते हैं, इससे बोलते हैं सिस्टमैटिक वे ऑफ ट्रेड. अब इसे बेसिकली मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं. कितने लोगों को खाने में पिज्जा पसंद है? कितने लोगों को खाने में पिज्जा पसंद है, राइट, और कितने लोगों के मुंह में अभी पानी आ रहा है पिज्जा के नाम से? यस, यस, मी मी मी. जो भी आपको खाने में बेसिकली क्या पसंद है, चलो जो भी चीज पसंद है, जोयशा, राइट, मैं सभी लोगों के नाम लेता हूँ, राइट, अमित, एल्वेश, विकास, टीडी, जीके, हेमंत, हितेश, जेडी, जोयशा, अनंथा, मयांक, मोहम्मद, निर्मल, नितेश राज, प्रिंस, राहुल, रवि कुमार, रौनक, शिववर्धन, सुचित, संदीप, शहद, अब्दुल, विश्वा, राइट. सभी लोगों को आपका क्या, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, राइट? लिट्टी चोखा, राइट, लिट्टी चोखा is also my favorite. It's a famous dish from Bihar, right? Rajma chawal, very good, very good. Biryani, Rahul Shetty, oh, nice, nice.
Very good. Okay. Someone says gulab jamun. Wow, that's nice. Done. Chicken roll, rice. डन। तो अब मैं आपको बताता हूं, जैसे समझ लो आपको जो भी खाना बनाना, जब उसके उसके 7 स्टेप्स आपके पास आ जाए या उसके 5 स्टेप्स आपके पास आ जाए कि सबसे पहले आपको ये करना है, मतलब गैस गैस या स्टोव को चालू करना है, उसके बाद आपको ये करना है, दूसरा स्टेप आपका ये हो गया, तीसरा स्टेप आपका ये हो गया, तो जो भी चीज आपको करनी है ना, उसकी जब आपके पास 100% क्लैरिटी आ जाए कि मुझे बेसिकली करना क्या, एंड वही क्लैरिटी को बोलते हैं सिस्टमैटिक वे ऑफ ट्रेडिंग, कि आपको अब प्रोसेस पता चल गई कि जैसे मुझे पिज्जा बनाना है, तो मेरे पास 7 स्टेप्स आ गए कि मुझे पिज्जा कैसे बनाना है, राइट। अब वो 7 स्टेप्स मेरे ऐसे हैं कि इस तरीके से पिज्जा बनेगा। अब मैंने वो 7 स्टेप को फॉलो किया तो लास्ट में मुझे रिजल्ट्स में पिज्जा मिलेगा। वो सेम स्टेप है। अब आपने मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाया होगा, मैकडोनल्ड्स फॉलो दिस थिंग्स। आप इंडिया में मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाओ, आप दुबई में खाओ, आप दिल्ली में खाओ, गुजरात में खाओ, कोलकाता में खाओ, राइट, बिहार में खाओ, पंजाब में खाओ, कहीं पे भी खाओ मैकडोनल्ड्स का बर्गर, बर्गर टेस्ट द सेम। व्हाई? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बर्गर इज द सेम, राइट। बिकॉज बर्गर बनाने की जो प्रोसेस है वो सेम है, तो चाहे वो मैं बनाऊं, कोई और बनाए, मैकडोनल्ड्स का ओनर आके कोई बनाए, कोई एम्प्लॉयज बनाए, किसी को बर्गर के बारे में नॉलेज नहीं है वो भी बनाए, तो टेस्ट सिमिलर ही आएगा, क्योंकि आप जो उसके रूल्स हैं वो सेम फॉलो कर रहे हो। इसी तरीके से सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके पास फिक्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इसे बेसिकली सिस्टमैटिक ट्रेडिंग बोला जाता है, कि ट्रेडिंग के आपके पास फिक्स रूल्स हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि कंसिस्टेंसी होती है, आप उसको बैक टेस्ट कर पाओगे, आप उसको ऑटोमेशन कर पाओगे। इट मींस अब आप यूं, अब आपकी खुद की जरूरत नहीं। अब आज मैं खुद से स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड नहीं करता, मेरे एल्गोस जो है वो मार्केट में एग्जीक्यूट होते हैं, मैं खुद से कभी मैन्युअली ऑर्डर्स नहीं डालता हूँ। सारे सारे जो ट्रेड्स होते हैं वो मेरे एल्गोस के थ्रू होते हैं। और मैं एल्गोस के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। आप उसको स्केल कर सकते हो कि जब आपका खुद का इंटरेक्शन नहीं होता तो आप ऐसे बिजनेस को स्केल कर सकते हो, इमोशन नहीं आते, राइट, क्योंकि अब आप खुद कर ही नहीं, इमोशन नहीं आएगा। एंड आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब ये हो गया कि आपके पास एक बड़ा कैपिटल है, तो अब आप निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हो, कमोडिटीज में भी कर सकते हो, अलग अलग सेक्टर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। ये बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एडवांस टॉपिक, बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, किसी ने बोला बिरयानी, गुलाब जामुन, पिज्जा, राजमा चावल, चिकन रोल, ये वो, बहुत सारी चीजें। तो मार्केट सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करना है। यू लाइक निफ्टी, ट्रेड ऑन निफ्टी। यू लाइक बैंक निफ्टी, ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी। यू लाइक स्टॉक्स, ट्रेड ऑन स्टॉक्स। तो जो भी बेसिकली आपको समझ में आता है और जो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से अच्छा बैठता है आपके पास, आपको बेसिकली उसको सिलेक्ट करना है। तो देखो जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं स्टॉक्स, हम यहाँ पे बेसिकली स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट। सेकंड, पोजीशन साइज। अब पोजीशन साइज का मतलब क्या हुआ कि यार आप कितनी क्वांटिटी से ट्रेड दोगे, तो वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार आपके पास अगर 1 लाख कैपिटल है और 1 लाख कैपिटल के ऊपर आप अगर समझ लो 2% का रिस्क लेना चाहते हो, जनरली ये रूल अच्छा नहीं है, बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो 2% का रूल आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो दैट इज 2000 रुपीज। तो अब आपकी जो ट्रेडिंग, जो आप स्टॉक्स खरीदोगे उस पे आपको इस तरीके से खरीदना है कि आपका एट द एंड अगर लॉस भी होता है तो वो 2000 रुपीज का हो। कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो उसके रूल्स फिक्स होने चाहिए। एंड रिस्क को कैसे मैनेज करना है, रिस्क मैनेज मतलब पोजीशन साइज, मैं कितने शेयर से ट्रेड करूंगा और पर ट्रेड मेरा रिस्क कितना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक मस्त सिस्टम समझाता हूँ, राइट, एक स्ट्रैटेजी समझाता हूँ। कितने लोगों के पास ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी है और जो वो एक ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं? कितने लोगों के पास ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी है और वो एक स्ट्रैटेजी से ट्रेड करते हैं? कितने लोगों के पास कोई एक स्ट्रैटेजी है? Done, sir, me. Yes, yes, I have. Done. Okay, nice.
सो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। जैसे समझ लो आपके सामने ये REC का चार्ट ओपन हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ एक चीज दिख रही है क्या? किसी को कुछ नोटिस हो रहा है? आप एक बार देख के बताओ, क्या यहाँ पे कोई आपको एक चीज दिख रही है? यस, यस। तो अब हम यहाँ पे एक चीज करते हैं, मेरे बाय एंड सेल के रूल्स को फिक्स करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि मुझे 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना, कैंडल स्टिक्स यूज करनी है यहाँ पे। तो जब भी पहली कैंडल जो बनती है, तो पहली कैंडल के अंदर 5 छोटी छोटी कैंडल बननी चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5। ये 5 कैंडल ऐसे बननी चाहिए कि ये कैंडल का लो एंड हाई जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर ये 5 कैंडल अंदर बन जाती है and तब तक कैंडल का लो एंड हाई ब्रेक नहीं होता, तो ऐसे स्टॉक्स को हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा बेसिकली फर्स्ट स्टेप होगा। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है कि एंट्री कहां से करनी है, एग्जिट कहां से करनी है। तो चलो वो भी समझ लेते हैं हम, राइट। अब एंट्री कैसे करेंगे? जैसे ये 5 स्टेप्स, ये 5 कैंडल अंदर बन जाती है, जैसे ही ये 5 कैंडल अंदर बन जाती है, तो यहाँ पे आपको हाई एंड लो मार्क करना है। अगर लो ब्रेक होता है कैंडल का, तो लो ब्रेक होते होने पर आप यहाँ पे सेल करोगे, और अगर हाई ब्रेक होता है कैंडल का, तो आप यहाँ पे बेसिकली बाय करोगे। अब यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपको आपका कोई दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? यहाँ पे आपको बेसिकली लगता है कि आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये तो बहुत हार्ड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आपने कुछ बता दी, समझ में नहीं आ रहा है, रिपीट करो एक बार। आई ऑल्सो फॉलो दिस। वेरी गुड, वेरी गुड जॉयसा, राइट। तो अब इसके मैं रूल्स बताता हूँ। पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, कैंडल स्टिक्स को यूज करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के अंदर 5 छोटी छोटी कैंडल बननी चाहिए, और पहली कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे, लो मार्क कर लेंगे। इफ हाई ब्रेक होता है तो हम बाय का ऑर्डर लगाएंगे, लिमिट ऑर्डर। एंड अगर लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये ऑर्डर तो लगा दिए और मेरा सेल का ट्रेड भी हो गया, तो अब मैं एग्जिट कब करूंगा? एग्जिट मैं करूंगा 3:25 पे। कितने बजे एग्जिट करेंगे हम? 3:25 पे। वेरी इजी, वेरी गुड, राइट। अब आपका क्वेश्चन होगा यार कि इस पे सर ये बताओ कितने शेयर्स को खरीदे और कितने शेयर्स को बेचे, ये तो आपने बताया ही नहीं। कितने लोगों को ये जानना है? कितने लोगों को ये जानना है कि सर कितने शेयर्स को खरीदना है या कितने शेयर्स को बेचना है, ये तो बताओ। रिस्क को कैसे मैनेज करें, स्ट्रेटेजीज के रूल्स तो पता चल गए, राइट। टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट टू नो। टाइप मी इन द चैट बॉक्स, और टाइप रिस्क मैनेज in the chat box. Type risk manage in the chat box. I want answer of each and everyone. Participates with me. If you participate, you learn. If you learn, you will apply. You can take action, and you if you take action, you will get a results. Right? ऐसे बैठ बैठ के मतलब मुर्दों की तरह मत देखा करो, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आई नो आप बिजी हो, आई नो आप जॉब करके आए हो, आई नो आप थक गए हो, स्टिल राइट आपको पार्टिसिपेट्स करना है, सो दैट मार्केट को ऐसे लगे कि आप कुछ एफर्ट्स कर रहे हो अपनी लाइफ में। इफ यू डू सम एफर्ट्स यू विल गेट सम रिजल्ट्स, राइट। दैट आई लर्न। मैं थका भी आ रहा होता हूँ, मैं रात को 12-12 बजे यूएस में लेक्चर्स अटेंड करता हूँ। मैं एक बार मतलब रात को 3 बजे लेक्चर अटेंड कर रहा था, क्योंकि उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग मुझे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं। वहां से भी मैं सीखता हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने में, राइट। दैट्स अ गुड थिंग। एंड मैं जितना सीख पाऊंगा उतना ही मैं शेयर कर पाऊंगा। कैन वर्क इन द निफ्टी? नो, फॉर निफ्टी वी यूज डिफरेंट सिस्टम, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या किया कि ये कैंडल के हाई एंड लो को मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हमने सेल कर दिया, यहाँ पे बाय है, यहाँ पे सेल है, और जैसे लो ब्रेक होता है तो हमने सेल किया और 3:15 पे एग्जिट कर लिया। अब बहुत एक मस्त चीज समझाता हूँ कि यार रिस्क को कैसे मैनेज करें। ये सारी चीजें तो सर हमने समझ ली, बट ये बताओ अब रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। तो चलो रिस्क मैनेजमेंट भी समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरी टीम ने एक रिस्क कैलकुलेशन की शीट बनाई है, तो वो भी समझा देते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले कितने लोगों को मेरा पीएनएल देखना है? आप सब लोग बोलोगे कि सर आप तो ये सब बता रहे हो, बट आप क्या प्रॉफिट कर रहे हो, क्या आप पैसे कमा रहे हो? कितने लोगों को मेरा पीएनएल देखना है?
type PNL in the chat box. If you want to see my profit and loss statement, type me in the chat box. Ronak saying P. Joysa is saying, I trust you. PNL, PNL. Yes, yes, yes. Don't trust anyone, right? Just say yes, right? Because if I am a not profitable trader, how can I teach you that you can become a profitable? हो ही नहीं सकता. जब मैंने कभी मेरी लाइफ में गन नहीं चलाई, how can I teach you कि किस तरीके से गन चलाई जाती है, right? There is no logic behind that. So everyone wants to see my PNL. And कितने लोग सच में अपना PNL दिखाते हैं? कोई दिखाता है क्या? आप किसी को जानते हो जो अपना PNL ओपनली शो करता है? नो और यस, राइट? और क्योंकि PNL मतलब बताते ही नहीं, रियल चीज शेयर ही नहीं करना चाहते, तो मैं आपको मेरा 2 मंथ का PNL शेयर करता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा बेसिकली मेरे करंट ट्रेड्स कौन से रनिंग है, वो भी शेयर करता हूँ. तो यहाँ पे बेसिकली आप मेरा ये अकाउंट देख पा रहे होंगे. दिस इज माय अकाउंट एंड अभी निफ्टी का शॉर्ट ट्रेड चल रहा है 300 क्वांटिटी, 18,000 समथिंग का प्रॉफिट है इस पे. एंड आप देखोगे तो मैंने आज ही ऑर्डर लिया था. यहाँ पे आप ऑर्डर भी देख सकते हो. तो देयर इज, ये कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है. आप बोलो तो मैं इसको कैंसिल करके भी फिर से कर सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन एडिटिंग और समथिंग, राइट? सो दैट्स व्हाई. सो इस पे जो टोटल कैपिटल है दैट इज 34 लाख रुपीस. इस पे अभी 17 लाख रुपीस का मार्जिन अवेलेबल है, बिकॉज बहुत सारी चीजें. अब यहाँ पे मैं आपको बहुत और चीजें दिखाता हूँ. एक तो मेरी ये पोजीशन रनिंग है. अब मैं आपको कंसोल में जाके दिखाता हूँ. आपको क्या लगता है, मैं अभी प्रॉफिट कर रहा होगा या मेरा लॉस होगा? आपको क्या लगता है? कभी कभी तो लगता है लाइव है और वीडियो स्टार्ट कर दी हो. श्यामल, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि लाइव में वीडियो स्टार्ट कर दी? इट्स कंप्लीटली लाइव, राइट? देयर इज नो वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट. कितने लोगों को लगता है कि मैं प्रॉफिट में होगा और कितने लोगों को ये लगता है कि आई एम इन लॉस, राइट? टाइप यस, मतलब इफ यू आर सी आई एम इन प्रॉफिट देन टाइप पी. इफ यू थिंक आई एम इन लॉस टाइप एल. P or L. If you think I'm in loss, type L in the chat box. Nitish, Rahul, Hitesh, Kishan, Mridul, Drumil, Anand, Kajal. Yes, yes. सारी चीज बताऊंगा. स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है. वेट फॉर द फ्यू सेकंड्स, राइट? डोंट वरी अबाउट दैट. तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज 34 लाख रुपीज अकाउंट. एंड यहाँ पे कुछ मैं पहले आपको होल्डिंग्स दिखाता हूँ मेरी कि कितने का होल्डिंग है. तो 33 लाख रुपीस की तो अभी टोटल होल्डिंग है मेरे पास. तो जिसपे ये सारी चीजें अवेलेबल है, ये सारे शेयर्स को परचेस किया हुआ है. यू सी ऑल ग्रीन, राइट? एंड अब मैं आपको PNL शो करता हूँ. बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड मार्च से अभी तक का PNL दिखाता हूँ. आई डोंट नो कितना है, बट लेट्स चेक. So around 2 lakh rupees plus, right? It's a small account. Basically, I have one more account also. In that, I'm doing different kind of trading. That I'm doing option selling, and 25,000 rupees is the brokerage, and 1.76 lakh is a profit. Right? So that's good or that's not good. That's good or that's not good. आपके नहीं, दूसरों के वेबिनार ने. अच्छा, good. That's awesome. Thank you, thank you, thank you everyone. Thank you, thank you. थैंक यू. नाइस नाइस, कूल. तो अब क्लास को और स्टार्ट करिए कि अभी आपको और क्वेश्चन है. हाउ मच कैपिटल यू यूज? कैपिटल इज टोटल. देखो इस ट्रेड में कितना कैपिटल यूज होता है आप खुद देख लो, राइट? इतना कैपिटल मैं अभी यूज करता हूँ. बाकी दूसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए. सो नाउ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द PNL और शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस यस यस, डन डन डन. सो चलो PNL को गोली मारते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चलो. और अब यहाँ पे आते हैं. अब ये सीख लिया. अब हमने जो शीट हमने ओपन करी थी बेसिकली रिस्क कैलकुलेशन की, उसको एक बार ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं. अब सबसे पहले मैं आप में से ना किसी को अनम्यूट करूंगा. तो किसको मेरे साथ अभी 1 to 1 बात करनी है, राइट? जिसको मैं अनम्यूट करके थोड़े से क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत मजा आएगा, राइट? जिसको भी होना है अपना हैंड रेस करो. जिसको भी होना है अपना आप हैंड रेस कर सकते हो. M टाइप कर सकते हो. यस यस, मी मी मी. तो मैं यहाँ पे त, 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 मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसके मी आए हुए हैं दैट इज, एक सेकेंड,
Rahul Shetty. Where are you, Rahul? हाँ, तो डन। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अलाउड टू टॉक, राहुल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन। यस, हाय राहुल। हेलो। हाय Hi. हाय राहुल। हाय राहुल, हाउ आर यू? Yeah, I'm good, Darshan. Oh, that's good. So Rahul, since how long are you into trading? It's been 4 months. नाइस नाइस। तो चलो, आपको बेसिक्स पता है सारे, राइट? अब मुझे ये बताओ कि ये शेयर्स इज आरएसी, राइट? अब कहाँ पे मुझे सेल करना है इससे? सेल प्राइस मेरी क्या होगी? द लो ऑफ दिस कैंडल, राइट? तो Once the हाउ low मच इज इट? breaks, we have to sell it. यस, बट अभी प्राइस क्या है? लो की प्राइस क्या है? 5 to 1। Yes. 5 to 1 है, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अब देखो, ये शीट में सबसे पहले क्या करना है राहुल? अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है? 1 lakh. तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख आ गया। 1 लाख का 2% इज 2,000 रुपीज। Yes. हेलो राहुल, Yes. परसेंट इज 2,000 रुपीज, Yes. राइट? सो बी एक्टिव, राइट? हाँ, सो अब मेरा सेल ऑर्डर कहाँ पे आएगा? इट्स 5 to 1। यहाँ पे आप लो चेक करो, इट्स 5 to 1.80। Yes. तो जहां पे मेरा ऑर्डर आ रहा है ना, बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने कैपिटल डाल दिया, कितना रिस्क लेना है वो डाल दिया। तो 5 to 1.80, ये मेरी एंट्री प्राइस है। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है? स्टॉप लॉस इज 536.55। स्टॉप लॉस इज हाई। स्टॉप लॉस Okay. इज 537.70। कितना हुआ स्टॉप लॉस? जितने भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप सीधा मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका उसी टाइम पे आंसर कर दूंगा। 537.70। Yes. 537. High is the stop loss. तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देता हूँ 537.50। जैसे मैं एंटर करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा? एक सेकेंड, उल्टा लिखना है हमें। 537 और 5 to 1, 53, सॉरी, 5 to 1। हाँ, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदना है। तो यहाँ पे मुझे बताया 121 शेयर्स को लेना है। एंड मेरा पर शेयर 16 रुपए का रिस्क हो सकता है। और इस ट्रेड में अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा दैट इज 2,000। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम आरईसी लिख देते हैं, रैक। व्हाट इज सेल प्राइस? सेल प्राइस इज 5 to 1। मेरा स्टॉप लॉस इज अराउंड 537। यस, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होता है दैट इज 537। एंड मुझे कितनी क्वांटिटी में खरीदना है? दैट इज 1 to 1। मुझे इतनी क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 3:25 पे प्राइस क्या हुई थी मार्केट की, और उस टाइम पे हम एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और बेसिकली 325 पे देखूंगा। तो 325 यहाँ पे है। 325 को ओपनिंग इज 510। तो मेरा 510 पे एग्जिट हो जाता है। तो मेरा एग्जिट इज 510। तो मुझे यहाँ पे कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट इज 11 पॉइंट्स, क्योंकि मैंने, अब मैं यहाँ पे सिंपल अगर कैलकुलेट करता हूं कि 11 into 121 कितना होता है, आप सभी लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर रहा हूं, राइट? सो इट्स, 1 सेकेंड, इट्स 5 to 1 into 11, इट्स इक्वल टू, सो 5, 1 सेकेंड, मेरी क्वांटिटी कितनी? माई क्वांटिटी इज 1 to 1। तो यहाँ पे 1 to 1 into 11, मुझे 11 पॉइंट्स मिले। तो यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट्स हुआ, राइट, दैट इज अराउंड 1,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ 1 लाख के ऊपर। 1331।
इतना मुझे प्रॉफिट हुआ। अब ये कितने लोगों को समझ में आया, कि इस कितने लोगों को इस पे कोई कंफ्यूजन है? राइट। अब यहाँ पे मैं सिंपल बताता हूँ क्या किया। हमने इस प्राइस के ऊपर स्टॉक को सेल किया था, ये बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस था, इतनी क्वांटिटी से मुझे ट्रेड करना था, ये जो, और मैंने 3:25 पे यहाँ पे एग्जिट किया, मुझे 11 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो मेरी जितनी क्वांटिटी थी उससे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पॉइंट्स के साथ, तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। राइट, सिंपल। और इस पे कोई लॉजिक नहीं। अब कितने लोगों को लगता है ट्रेडिंग इज इजी? कितने लोगों को ये लगता है कि नाउ इट्स इजी? राइट, कि जब आपके पास बाई सेल, एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस एंड सारी चीजों के जब रूल्स फिक्स होते हैं, राइट, तो ट्रेडिंग इज सिंपल। राइट, कितने लोगों को ये लगता है ट्रेडिंग इज सिंपल? टाइप सिंपल इन द चैट बॉक्स। टाइप सिंपल in the chat box. See, don't be a lazy person, right? Lazy person cannot make good money in the stock market. Active person can make money, right? Simple, 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 simple. Very good. Good, good, good. Now मैं यहाँ से थोड़ा स्पीड अप करूंगा, एनर्जी थोड़ी और हाई जाएगी, एंड आपको और सारी चीजें सीखने मिलेगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, कि मार्केट सिलेक्शन, जबकि मैंने यहाँ पे स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, पोजीशन साइज कितने कितने क्वांटिटी से ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट करना है, जो मेरे रूल्स फिक्स हैं। रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि मेरा पर ट्रेड कितना लॉस होने वाला है, मेरा मंथली कितना लॉस होगा, और मेरा ईयरली कितना लॉस है, मैंने सारी चीज फिक्स करेंगे। राइट, तो ये 4 टॉपिक जो है अब यहाँ पे हमने क्लियर तरीके से समझ। अब थोड़ा और एडवांस के ऊपर जाते हैं। राइट, अब किस तरीके से एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करें? कितने लोगों को ये जानना है कि यार एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप होती है? जैसे दर्शन, आपने ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई, आप हमें सिखा दो कैसे हम भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते। इफ यू वांट टू नो, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यस, यस, जितने भी लोग एक्टिव है, मैं लास्ट में उसे अनम्यूट करूंगा, एंड उसे मौका दूंगा उसकी सारी प्रॉब्लम्स मुझे शेयर करने का, एंड मैं पर्सनली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सो इफ यू आर एक्टिव इन द कम्युनिटी, इफ यू आर एक्टिव इन द चैट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। राइट, मैं आपको अनम्यूट करने वाला हूं, मुझे नाम याद है, मैं सभी लोगों का देखते रहता हूँ, मी, बैक टेस्ट, ये डन, वेरी गुड। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज, जैसे कोई भी चीज दुनिया में बनती है ना, तो फर्स्ट इज, पहले वो यहाँ पे बनती है, इट्स इन अ माइंड। राइट, सेकंड वो पेपर पे आती है, एंड थर्ड वो रियल में एग्जीक्यूट होती है। सो फर्स्ट स्टेप इज आइडिया जनरेशन। अब आइडिया जनरेशन का सिंपल मतलब क्या हुआ? देखो, आइडिया जनरेशन का सिंपल मतलब ये है कि आप बेसिकली मार्केट में जो भी ट्रेड करना चाहते हो, आप मार्केट को पहले ऑब्जर्व करो और देखो कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। जैसे आपने मार्केट को ऑब्जर्व करा और आपने देखा यार कि मार्केट जब फर्स्ट 1 घंटे की कैंडल रेड बनाता है, तो उस दिन मार्केट डाउन जाता है। आपने ये ऑब्जर्व करा कि यार मार्केट जब अपनी फर्स्ट 1 घंटे की कैंडल ग्रीन बनाता है, उस दिन मार्केट यार ऊपर जाता है। या आपने बहुत सारे और आइडियाज देखे कि मार्केट की जो थर्ड कैंडल है, उसका अगर ब्रेकआउट होता है, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम में थर्ड कैंडल की अगर उसका जो ब्रेकआउट होता है, तो यार वहां से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी, वहां से मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली आपने क्या करा कि आपने मार्केट को ऑब्जर्व करा और रूल्स को लिखा कि यार क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, मैं उसको लिख रहा हूं। तो द फर्स्ट स्टेप इज आइडिया जनरेशन, कि जहां पे बेसिकली आप आइडिया जो है वो मार्केट को ऑब्जर्व करके लिखोगे। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि मैं उसके रूल्स को फिक्स करूंगा। अब रूल्स में आपको 3 चीजें सबसे पहले फिक्स करनी है। कौन सी ये 3 चीजें? बाय कहां से करें, सेल कहां से करें, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। बाय कहां से करना है, सेल कहां से करना है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है। बाकी इंक्लूडेड है कितने पोजीशन से, कितनी क्वांटिटी से करना है, कितना रिस्क लेना है। राइट, तो ये 5 चीजें मेरी जो फिक्स होनी चाहिए। बाय कहां से करना है, सेल कहां से करना है, स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, और कितना रिस्क लेना चाहता हूं। तो देयर इज 5। जब भी आपको रूल्स डिफाइन करना है, ऐसे 5 को देखना है, ऐसे ऐसे करना है। बाय कहां से करें, सेल कहां से करें, राइट, मेरा एंट्री कहां पे हो सकती है, मेरा स्टॉप लॉस कहां पे हो सकता है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, पोजीशन साइजिंग कैसी है। तो ये 5 रूल्स हैं। अब जब आपके पास रूल्स डिफाइन हो जाते, उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद आपको करना होता है बैक टेस्ट। अब बैक टेस्ट का मतलब क्या हुआ है यार? बैक देखो, मैं जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। बैक टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपने किसी चीज को पास्ट डेटा के ऊपर टेस्ट किया और देखा कि यार
इस चीज का रिजल्ट कैसा। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल क्वेश्चन एक पर्सन आपके पास आता है जिसका नाम है XYZ, आपको नहीं पता, वो आपको आके बोलता है कि यार मुझे 10,000 रुपए चाहिए। जैसे तो आप क्या उसे 10,000 रुपए दोगे? अमित, राहुल, एलविश, विकास, गिरीश, हितेश, हेमंत, जेडी, खुशी, अनंत, आनंदा, मयंक, मोहम्मद, राइट? कितने लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए देंगे? राइट, वो आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, कहाँ पे रहता है, क्या करेगा इस पैसे का, मतलब इसका गोल क्या है। नो नो नो, एवरीवन इज सेइंग नो। नो, व्हाई नो? व्हाई द रीजन ऑफ नो? व्हाई? बिकॉज अब आपको पता नहीं है कि यार वो करने क्या वाला है इस पैसे। अब एक पर्सन आता है जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको आके बोलता है कि यार आई नीड 10,000 रुपीज, मुझे 10,000 रुपीज से मुझे बुक्स खरीदनी है और मैं तुझे इस डेट को वापस करने वाला हूं। तो तब उस केस में, और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसको 5 साल से जानते हो, तो क्या उस केस में आप उसको पैसे दोगे? उस केस में क्या आप उसको पैसे दोगे? यस, 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 नो, यस, 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 यस। क्यों? क्यों आप पर्सन ए को पैसे नहीं दोगे, क्यों आप पर्सन बी को दोगे? द रीजन इज दैट कि पर्सन ए का आपके पास कोई डेटा नहीं है। आपको नहीं पता वो पैसे देने के बाद क्या करेगा, वापस लौटाएगा भी कि नहीं लौटा पाएगा, होगा क्या, करेगा क्या। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। पर्सन बी जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है कि अगर ये वापस नहीं देता, मैं उसके भाई को बोलूंगा, मैं उसके फैमिली मेंबर्स को बोलूंगा, मैं उसके पापा के पास जाऊंगा, उसको बुक्स खरीदनी है तो उसने मुझे टाइम एंड डेट बता दिया कि इस टाइम पे मैं आपको वापस कर दूं। तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि आपके पास पर्सन ए का बैक टेस्ट रिजल्ट नहीं था, तो इसीलिए आपने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। और पर्सन बी का आपके पास बैक टेस्ट रिजल्ट था, इसीलिए आपने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, एंड दैट्स व्हाई यू गिव मनी, एंड नाउ यू डोंट केयर अबाउट यार 10,000 के आपका ही दोस्त है, आप पैसे दे दोगे, राइट? तो स्ट्रैटेजी में भी ऐसा ही होता है कि जब भी आप कोई किस टाइप की ट्रेडिंग करते हो और जब भी आपको एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो जब आप उसका बैक टेस्ट जो है वो बैक टेस्ट देखते हो, तो बैक टेस्ट में आपको पता चल जाता है कि ये स्ट्रैटेजी ने कितनी बार प्रॉफिट करा है, ये स्ट्रैटेजी ने कितनी बार लॉस करा है। अगर ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है तो इसको मैं मेरे अकाउंट्स में चलाऊंगा, अगर ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं है तो मैं अपने अकाउंट्स में क्यों चलाऊं इसको। अब यहाँ पे मैं आपको एक और अच्छी चीज दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं, एक मैंने बहुत मस्त स्ट्रैटेजी बनाई है। कितने लोगों को मेरी 2 मिनट में कंप्लीट होने वाली और एक स्ट्रैटेजी सीखनी है, राइट? कि जो बेसिकली आपका दिन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लेगी, और आज उस स्ट्रैटेजी ने बम्पर प्रॉफिट दिया है, मतलब सुपर बम्पर प्रॉफिट। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर आज हमने मतलब कितना रिटर्न बना लिया, आप मान नहीं सकते। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, सिंपल के सिस्टम के रूल्स क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, जितने भी लोगों को ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड करना है, ये स्ट्रैटेजी उसके लिए राम बाण हो सकती है, राइट? राइट। सो अब इसके रूल्स क्या है वो जान लेते हैं। कितने लोगों को रूल्स जानने, पहले ये बताओ यार, मुझे थोड़ी ना एनर्जेटिक नहीं लग रहे, मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग ढीले ढीले से हैं, राइट? तो ढीले ढीले से मत हो जाओ, थोड़े से एनर्जी दिखाओ। आई एम पम्प्ड अप, फुल फुल ऑफ एनर्जी के साथ मैं जो है आपके साथ ये कर रहा हूँ। यस, 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 मी। सर बताइए, मी, 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 मी। वेरी गुड, वेरी गुड, 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 चल, कूल। अब मैं स्ट्रेटेजी के रूल्स बताता हूँ। सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही चलाएंगे, स्टॉक्स में नहीं चलाएंगे और दूसरे किस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में, राइट? ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, ये बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, कैंडल स्टिक्स को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे कैंडल का हाई मार्क कर रहे हैं, कैंडल का लो मार्क कर रहे हैं। थर्ड कैंडल, पहली कैंडल को अवॉइड करना है, दूसरी कैंडल को अवॉइड करना है, और थर्ड कैंडल का हाई एंड लो को मार्क करना है। अगर हाई कैंडल का ब्रेक होता है देन हम सिंपल हमारा यहाँ पे बाय ऑर्डर कर देंगे, और अगर लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम सिंपल सेल कर देंगे, और 3:25 को जो है वो एग्जिट कर देंगे। 3:25 को हम बेसिकली यहाँ पे एग्जिट कर। अब कितने लोगों को इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के रूल्स क्लियर हो गए? यहाँ पे मैं मोहम्मद कैफ को अनम्यूट करता हूँ। मोहम्मद कैफ, आप यू आर अलाउड टू टॉक। एंड मैं इस पे रौनक को अनम्यूट करता हूँ।
तो आप अभी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाय रौनक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, Mohammed, you can also unmute yourself if possible, and it's Hello. completely. Yeah, hi Mohammed, how are you? It's Ronak. Hi, Yes, Rashid. hi Ron. Hi Ronak, how are you? All good, sir. How are you? तो रौनक, इस स्ट्रेटेजी के रूल्स आपको क्लियर हो गए या रूल्स क्लियर नहीं हुए? सर ये स्ट्रेटजी में एक और बार रूल्स बता दीजिए। यस, तो देखो, जो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम निफ्टी का यूज करेंगे। ये सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे और यहाँ पे बेसिकली हम कैंडल स्टिक्स का यूज करने वाले हैं। अब क्या करना है, जो पहली कैंडल है उसको अवॉइड करना है, दूसरी कैंडल को अवॉइड करना है। जो तीसरी कैंडल बनती है निफ्टी की, राइट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, उस कैंडल का हाई मार्क कर लेना है ऐसे, और इस कैंडल का लो मार्क कर लेना है। अरे अब हमारा जो रूल्स है कि अगर हाई ब्रेक हो है तो हम सिंपल क्या करेंगे, हाई ब्रेक होता है मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे या सेल, बाय। राइट। अगर लो ब्रेक होता है तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे या सेल। सेल। तो यहाँ पे, और अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? सर जो हाई होगा वही स्टॉप लॉस होगा थर्ड कैंडल। यस यस। तो कितने लोगों को ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई? और एग्जिट कब करना है? एग्जिट 325। यस, वेरी गुड। तो अब एक बार आप अपनी तरफ तरीके से मुझे रूल्स बताइए कि आपने जो भी रूल समझे वो एक बार बता दीजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको पता चल गया, राइट, की स्ट्रेटेजी क्या है। ओके सर, सो हम फर्स्टली यस यस, मैं 15 मिनट्स पहले। टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक करेंगे। यस, सिंपल अब मैं, कैंडल और निफ्टी इंडेक्स में करेंगे। ये एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इंट्राडे ऐसे। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है, इंडेक्स में यूज होती है, और इस पे ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं और इस पे फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट। ये करेक्ट। ऑप्शन बायर्स के लिए भी है और ऑप्शन सेलर्स के लिए भी है, और ये फ्यूचर्स के लिए भी है, तो सारी चीज कर सकते हैं। अब सिंपल हमने क्या किया यहाँ पे कि थर्ड कैंडल का हाई मार्क कर लिया एंड थर्ड कैंडल का लो मार्क कर लिया। एंड यहाँ पे आप, अब यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ या लो ब्रेक हुआ है? यहाँ पे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ या लो ब्रेक हुआ है? लो ब्रेक हुआ है। यहाँ पे कितने लोगों को ऐसा लगता है कि लो ब्रेक हुआ है? कितने लोगों को ये लगता है हाई ब्रेक हुआ है? If you think that ki high break, then type high. If you think that low break, then type low. Yes, yes, everyone. Nice, very good. तो यहाँ पे अब लो ब्रेक हुआ है, तो लो ब्रेक हुआ है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? एक तो मैं फ्यूचर्स को सेल कर सकता हूँ, ऑप्शंस को बाय कर सकता हूँ। मतलब अब कितने लोगों का ये क्वेश्चन होगा, सर ऑप्शन कहाँ का बाय करना है? देखो, जहां पे मार्केट चल रही है आप एट द मनी ऑप्शंस को बाय कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इस केस में पुट ऑप्शंस को बाय कर सकते थे, बट अब मौका चला गया क्योंकि आपने सीखने में देरी कर दी, इसकी वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कितना प्रॉफिट हुआ आज ही के दिन में। अगर आप शॉर्ट करते तो अराउंड 2213 के पास आपने शॉर्ट करा होता, और यहाँ पे जो इसका लो है इज 21932। तो अराउंड अराउंड मोर देन 260-70 पॉइंट्स आपको मिल जाते सिंगल ट्रेड में। ये इतनी रैली आपको कैप्चर करने में मिलती। यस, सर स्ट्रेटेजी में कोई एक्सपेक्टेशन है क्या? सारी चीजें शेयर करता हूँ, इसका बैक टेस्ट भी शेयर करूंगा। यस, डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ पे आप एक सिंपल चीज देखो कि अगर आप किसी चीज को, जैसे समझ लो, एक सेकेंड, ये तो बाय का है मेरे ख्याल से, इसको सबसे पहले हटाता हूँ। मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन का बताता हूँ। तो देखो, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, आपका टारगेट यहाँ पे आया, और आपका स्टॉप लॉस बेसिकली यहाँ पे है, राइट। तो अब आपका स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस इज ओनली 45 पॉइंट्स, एंड उसके सामने आपके टारगेट्स देखो, मतलब लेस देन 45 पॉइंट्स स्टॉप लॉस, एंड उसके सामने आपका इतना बड़ा टारगेट। अब सिंपल रूल्स क्या है, थर्ड कैंडल को सिलेक्ट करना है, राइट, एंड हाई ब्रेक होता है बाय करना है, लो ब्रेक होता है सेल करना है, एंड 315 को 325 को एग्जिट करना है। कितने लोगों को ये सिंपल रूल समझ में आ गया? कितने लोगों को अब ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर हाँ, अब मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूं, अब मैं ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके प्रॉफिट्स कर सकता हूं मार्केट से? राहुल सेज मी, सुचित सेज मी, राइट राइट, मी मी मी, वेरी गुड।
वेरी गुड, यस यस, मोहम्मद कैफ सिंह मी। रौनक, क्या आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी को देख के अब आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है? इस पे आप ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, फ्यूचर्स भी कर सकते हो, सारी चीज कर सकते यस सर, यस हो। सर। अब ये आपने स्ट्रेटेजी तो देख ली, अब आप बोलोगे कि सर यार ये स्ट्रेटेजी तो समझ में आ गई, बट अब इसका ना कोई बैक टेस्ट भी दिखाओ तो ज्यादा समझ में आएगा। कितने लोगों को बैक टेस्ट देखना है? कितने लोगों को बैक टेस्ट देखना है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यस यस सर, क्या टाइम? यस, डन 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 डन, मी, वेरी गुड वेरी गुड, यू गाइस आर सो अमेजिंग, राइट। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बैक टेस्ट दिखाता हूँ स्ट्रैटेजी का। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें जाऊंगा मैं, और इस स्ट्रैटेजी का मेरे पास जो बैक टेस्ट है वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इस 21 22 यहाँ तक का है मेरे पास। जनरेट डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो बैक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास एक पोर्टफोलियो आ जाएगा बना हुआ। तो यहाँ पे बैक टेस्ट मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे हम बैक टेस्ट में ये देख सकते हैं। अब देखो बैक टेस्ट को कैसे ऑब्जर्व करना है, उसके मैट्रिक्स कैसे देखने, ये अब समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप समझ लो, बैक टेस्ट में सबसे पहली चीज जो जो देखी जाती है वो ये है कि यार स्ट्रेटेजी का मंथली ब्रेकअप, मतलब स्ट्रेटेजी मंथ ऑन मंथ आपको प्रॉफिट दे रही है कि नहीं। इससे पहले कितने लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करा था ट्रेड करने से पहले? कितने लोगों ने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करा था ट्रेड करने से पहले? अब्दुल रहमान, यस यस यस, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि आपकी स्ट्रेटेजी में कितना प्रॉफिट है। अब आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए का कैपिटल जो है ये नीडेड है इस स्ट्रेटेजी के लिए। ये आपको पता है जनवरी में 11,000 बने, 76,000 बने, 14,000 बने, 9,000 बने, 54,000 बने, 28,000 का लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 900 रुपए का प्रॉफिट, 62,000 प्रॉफिट, 8,400 का प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट, लॉस, एंड 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट। यहाँ पे आप और एक चीज देख लो, 22,000 रुपीज का लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट, 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 लॉस। तो यहाँ पे एक चीज आपको पता चल गई कि यार अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करते हो ना, तो ईयर में कैसे भी करके आपके 1 से 2 लाख रुपए तो बन ही जाते हैं। मतलब कितना रिटर्न हुआ? 100 से लेके 150% का रिटर्न, 100 से लेके 200% का रिटर्न। कितना, कितने लोगों को आज उसकी आंखें खुल गई कि एक सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम 100 से लेके 200% का रिटर्न कर सकते हैं। और इस पे भी कुछ नहीं करना, दिन के सिर्फ 2 मिनट लगाने हैं। हाई ब्रेक होता है सेल करना है, लो ब्रेक होता है, सॉरी, लो ब्रेक होता है सेल करना है, हाई ब्रेक होता है बाय करना है, और 315 325 पे एग्जिट करना है। कितने लोगों की आंखें खोल गई? टाइप बल्ब ऑन मूवमेंट, टाइप बी O in the chat box. Bulb on. Type BO in the chat box. Yes, yes. Very good. Very good. Amazing, amazing, amazing. अब एक सर और एक चीज क्वेश्चन है दिखाता हूँ जिस, यस सर, यस ये जो रिजल्ट्स है वो फ्यूचर्स पे है या ऑप्शंस पे है? यस, ये जो रिजल्ट्स हैं ये बेसिकली फ्यूचर्स के रिजल्ट्स हैं। ये फ्यूचर्स के रिजल्ट्स हैं कि जहां पे बेसिकली आप निफ्टी को बाय कर रहे हो। फ्यूचर्स के लिए आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल लगेगा, गॉट इट सर। राइट। यस। चलो गुड, नाइस। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, मेरे टोटल डेज कितने हैं? 545। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है तो कोई ओवरनाइट रिस्क भी नहीं है, मेरे टोटल ट्रेड्स भी 545 है। यहाँ पे आप एक चीज देखो, प्रॉफिट के डेज आपके कम है और आपके लॉस के डेज ज्यादा है, लेकिन स्टिल आप नेट में 4,42,000 रुपीज का प्रॉफिट कर रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है यार कि क्यों मैं कर पा रहा हूँ? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? रौनक, क्या लगता है आपको, या किसी के पास कोई आंसर है? क्या लगता है आपको कि क्यों इतना प्रॉफिट हो रहा है? सर मे बी राइट, प्रॉफिट ये के टाइम ट्रेड्स बड़े मिलते हैं एंड लॉस के टाइम छोटे लॉसेस होते ओके ओके। चलो, कितने लोगों को इसका आंसर पता है? नहीं, आंसर ये नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आप बहुत पास हो, लेकिन और भी मैं चीजें बताता हूँ। कितने लोगों का स्टॉप लॉस कोई बोल रहा है? नहीं, जिस आर आर, यस, शायद अब्दुल रहमान इज सेइंग आर आर, दैट्स अ राइट आंसर। आर आर इज बेसिकली अ रिस्क इज टू रिवॉर्ड। तो इस स्ट्रेटेजी का जो रिस्क इज टू रिवॉर्ड है दैट इज 1:4, कि आप 1 रुपये अगर लगाते हो तो 4 रुपये आपको मिलने की संभावना है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी, सिंपल स्ट्रेटेजी, बेस्ट स्ट्रेटेजी, राइट। कुछ लो दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ पे आपके पास सारे डेटा है कि मुझे मंथली कितना प्रॉफिट होगा, वीक में कितना प्रॉफिट होगा, मेरा लॉस कितना हो सकता है, मेरा मंथली एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। सारे डेटा जब आपको पता चल जाते हैं ना, अब आपके लिए ट्रेडिंग करना कितना आसान हो गया। आपके पास सिंपल स्ट्रेटेजी,
आपके पास बैक टेस्ट भी है, बैक टेस्ट में आपने देख लिया कि यार आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, आप रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो कर रहे हो, आप पोजीशन साइज को भी फॉलो कर रहे हो, एंड अब आप दिन का सिर्फ 2 मिनट स्पेंड करते हो ना अपना ट्रेडिंग कंप्लीट, एंड आप 100 से 200% रिटर्न कमाते हो। कितने लोगों का बल्ब ऑन हो गया ये सारी चीजें देख के? कितने लोगों का बल्ब ऑन हो गया ये सारी चीजें देख के? टाइप बल्ब ऑन इन द चैट बॉक्स, अगेन टाइप BO इन द चैट बॉक्स, बल्ब ऑन। यस, 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 वेरी गुड, डन, डन, कूल। और भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे और चार्ट्स भी दिखेंगे आपको, राइट। ये बेसिकली इक्विटी कब है, ये बताता है कि जहां से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, जितने भी कैपिटल से, उससे प्रॉफिट होते होते आपका आज कैपिटल कितना ग्रो हो गया, राइट। ये मंथली चार्ट दिखाता है कि आपको मंथ ऑन मंथ कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 72,000, ये वो। ये वीकली कितना प्रॉफिट हुआ, डेली कितना प्रॉफिट हुआ, ये भी सारी चीजें दिखाता है। स्ट्रीट कितनी है कि आप लगातार कितने टाइम तक प्रॉफिट में रहोगे, लगातार कितने डेज तक आप लॉस में जाओगे, आपका ड्रॉडाउन क्या है, मतलब कि आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है फ्रॉम द पीक। ये भी सारी चीजें यहाँ पे दी। तो अब आपके पास सारा डेटा है, यहाँ पे आपके ट्रेड्स के डेटा भी है, देखो यहाँ पे आपके पास कि इतने बजे ट्रेड स्टार्ट हुआ था, इतने बजे ट्रेड हुआ, आपका यहाँ पे इस ट्रेड में लॉस हुआ, इतने बजे आपका प्रॉफिट हुआ। आपके पास जब 100% हो जाता है, यहाँ पे देखो आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है कि 10 बजे आपने एंट्री करी, यहाँ पे आपने एग्जिट करा, ये करा, यहाँ पे आपने एंट्री करी, सारी चीज आपके पास फिक्स आ गई। अब ट्रेडिंग करना कितना आसान हो गया सभी लोगों के लिए। अब मुझे बताओ कितने लोगों को अब भी ट्रेडिंग हार्ड लग रही है? इतना समझने के बाद, इतना समझाने के बाद अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर ट्रेडिंग तो बहुत हार्ड है, अभी भी समझ में नहीं आ रही है? यस, 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 यस। कितने लोगों को ये लग रहा है ट्रेडिंग हार्ड है? नो, 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 नो। इजी, इजी, डन, 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 वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताओ, कितने लोगों को मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग पे आना है, एंड कितने लोग ऐसे हैं कि जिसे उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो शेयर करनी है मुझसे, और मैं, वो चाहते हैं कि मैं उसकी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करूं, मतलब सॉल्व करूं, राइट। टाइप इन द चैट बॉक्स। मैं यहाँ पे सबसे पहले, एक सेकेंड, कितने लोग ये चाहते हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यस, इफ यू वांट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यस, 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 ओके, वेरी गुड। टाइप मी। पर्सनल मतलब क्या? पर्सनल मतलब मैं आपके साथ 1-to-1 मीटिंग पे आऊंगा गूगल मीट के ऊपर, राइट। और गूगल मीट के ऊपर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की ट्राई करूंगा, और ये देखूंगा कि किस तरीके से जो है मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं? जितने भी लोग चाहते हैं, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, एंड अपना नाम एंड आपका जो नंबर है वो आप मेरी टीम को शेयर कर सकते हो। मेरी टीम में मोहम्मद है, राइट, एंड रौनक है, तो आप पर्सनल उसको अपना नंबर शेयर कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर 1-to-1, देन आप मेरी टीम को अपना नंबर शेयर कर दो। यस, 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 यस। तो मोहम्मद कैफ ने अपना नंबर दे दिया है, आप उसे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो इस क्लास के बाद। यस, यस, राहुल, जितने भी लोग चाहते हैं, राइट। सो यू हैव ओनली 3 मिनट्स फॉर दैट, एंड आफ्टर दैट हम क्लास को और स्टार्ट करेंगे, और आपके सबके क्वेश्चन आंसर लेंगे। उसके बाद मुझे और भी चीजें बतानी है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आप अपना नंबर शेयर कर दो, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। राहुल, वी गॉट योर नंबर, राइट। आप पर्सनल बेबी मोहम्मद को शेयर कर सकते हो, रौनक को शेयर कर सकते हो। यस, डन, 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 डन। कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये अपना टास्क? वेरी गुड, 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 कंप्लीट। राहुल इज सेइंग कंप्लीट, नाइस। अब मुझे ये जानना है यार कि कितने लोग जो हैं इस चीज के लिए सीरियस है, मुझे ये भी तो जानना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो मोर देन 450 प्लस पार्टिसिपेट्स है, राइट। और मैं अब 450 पार्टिसिपेट्स के साथ तो मैं कॉल पे नहीं आ सकता, राइट, बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड टाइम एंड बैंडविड्थ। तो विद अ ग्रेट हॉनर, राइट, आई वांट टू प्रेजेंट यू, राइट, कि मैं उसी लोगों के साथ आऊंगा जो कि सीरियस है। कितने लोग सीरियस हैं? टाइप सीरियस इन द चैट बॉक्स। कितने लोग सीरियस हैं? टाइप सीरियस इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर सीरियस टू कम 1-to-1 विथ मी, टाइप serious in the chat box if you are 100% serious. Yes, 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 yes. एंड मुझे ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं,
राइट। अभी अगर आप 10,000 से भी कर रहे हो, स्टिल आपको आपका ड्रीम है कि सर मैं 1 करोड़ का फंड मैनेज करूं, मुझे इतना प्रॉफिट करना है या मुझे ये करना है। यस, यस, यस। तो अब मैं आप सभी लोगों को एक चीज प्रेजेंट करता हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी बेसिकली। मैं ओनली 5 पीपल को लेने वाला हूं कि जिसके साथ मैं 1-to-1 कॉल पे आऊंगा। एंड वो 5 पीपल ऐसे होंगे कि जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हैं, ट्रेडिंग को सीरियस बिजनेस समझते हैं एंड मुझे अपना पर्टिकुलर टाइम देंगे। राइट। सो नाउ आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग विथ यू कि जितने भी लोग मेरे साथ राइट अभी कॉल पे आएंगे उसको क्या क्या बोनसेस मिलने वाले हैं वो भी मैं शेयर कर देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे बात करने का मौका मिलेगा जहां पे मैं पर्सनली मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मेरी टीम आपकी प्रॉब्लम को देख के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। दूसरी चीज, आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा मेरी कंपनी का, कि जहां पे बेसिकली हम ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करते हैं, जहां पे हम 50 करोड़ से ज्यादा का जो फंड्स जो है जो मैनेज करते हैं उसके एल्गोरिदम्स का आपको एक्सेस मिलेगा कि उसको कैसे आप अपने अकाउंट्स में ट्रेड कर सकते हो। कितने लोगों को अपने अकाउंट्स में एल्गोस चलाना और प्रॉफिट करना है, कितने लोगों को अपने अकाउंट्स में एल्गो चला के प्रॉफिट्स करना है, कितने लोगों को अपने अकाउंट्स में। यस, 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 वेरी गुड, ओके, नाइस, कूल, कूल। तो देखो मैं आपको मेरी वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। तो ये दिस इज माय प्लेटफॉर्म multify.com। यहाँ पे देख सकते हो मल्टीफाई ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग, वी आर मैनेजिंग करंटली 50 करोड़, सेवी रजिस्टर नंबर। और ये जो हमारी टॉप स्ट्रेटेजीज हैं ये बेसिकली इससे आपके अकाउंट्स में एल्गो होगा। एंड बेस्ट थिंग इज दैट कि आपको अब ट्रेडिंग देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं देखना है कि यार कब बाय करना है कब सेल करना है, कुछ नहीं करना है। आपको बस हमारे साथ अकाउंट को लिंक करना है एंड नेक्स्ट डे से आपके अकाउंट्स में ट्रेड स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस स्ट्रेटेजी का लास्ट मंथ का अगर आप रिटर्न देखो तो 19%। इस स्ट्रेटेजी का लास्ट मंथ का रिटर्न इज -5%। इस स्ट्रेटेजी का लास्ट मंथ का रिटर्न इज मोर देन 3.87%। राइट। तो बहुत सिंपल तरीके से, एंड ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। फिर एक और भी चीज देने वाला हूं कि आपको मेरी टीम जो हमारी दूसरी एक कंपनी है राइट जिसपे बेसिकली रिसर्च रिकमेंडेशन हम देते हैं। राइट, हम सेबी रजिस्टर्ड है इसीलिए हम रिसर्च रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो देने वाला हूं, दैट इज ऑल्सो वर्थ मोर देन 10,000 रुपीज। उसकी 1 मंथ की फीस 10,000 है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। 1-to-1 कॉल विथ मी, पीपल आर पेइंग मी 50,000 रुपीज फॉर 1-to-1 कॉल, 3 मंथ मल्टीफाई फ्री ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग सॉल्यूशन राइट जिसका सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 3 मंथ तक। एंड एक बेसिक से लेके एडवांस का बिगिनर का ट्रेनिंग का कोर्स मिलेगा जो मेरा है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अब कितने लोग हैं जो मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे आना चाहते हैं? बट क्योंकि मैं सभी लोगों के साथ कॉल पे नहीं आ सकता, क्योंकि मैं सभी लोगों के साथ कॉल पे नहीं आ सकता, तो मैंने एक छोटी सी अमाउंट रखा है इस चीज के लिए। एंड ये भी आपको लास्ट में जब आप मेरे साथ कॉल पे आते हो तो आपको ये अमाउंट भी 100% रिफंड कर दिया जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है ये अमाउंट कितना होगा? राइट, मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे आने के लिए ये कितना अमाउंट होगा ये? एंड वही सेम अमाउंट आपको जो है, मैं जब भी आप मेरे साथ कॉल पे आओगे इन कॉल को पूरी अटेंड करोगे तो मैं आपको वही अमाउंट 100% रिफंड करूँ। सो देर इज नो रिस्क एट ऑल। इट मीन्स हम कुछ चार्ज नहीं करें, बिकॉज मुझे ये पता चलेगा कि यू आर सीरियस एंड मुझे सिर्फ 5 ही लोगों के साथ करना है, बिकॉज मेरा टाइम जो है वो लिमिटेड है, मेरी एनर्जी जो है वो लिमिटेड है, मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं 300-400 लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ, इतने लोगों के साथ मीटिंग नहीं कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई मैं सिर्फ 5 लोगों को ले रहा हूँ। तो जो भी फर्स्ट 5 लोग होंगे मैं बस उसी को लेने वाला हूँ। एंड इसकी जो प्राइस है मैं अभी रिवील करने जा रहा हूं, एंड जो भी फर्स्ट 5 पे करेंगे उसको ये एक्सेस मिलेगा। एंड ये सारे बोनसेस के साथ साथ आपको जो है 100% रिफंड कर दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। शायद अब्दुल इज सेइंग 10 थे, 10 के रिफंड होगा रियली? यस, इट्स रिफंडेबल, डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो रख के हमारा कुछ नहीं होने वाला। पंकज शर्मा इज सेइंग 1,000, 5,000, 10,000। तो मैं अब प्राइस आप सभी लोगों के साथ रिवील करता हूं। द प्राइस ऑफ 1-to-1 कॉल इज जस्ट 499।
कि जिसपे आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे आ सकते हो। एंड ये सिर्फ फर्स्ट 5 पार्टिसिपेंट्स के लिए ही है। तो यहाँ पे रौनक आप लिंक डाल सकते हो रेजर पे का। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो रेजर पे का लिंक में पे करके आ सकते हैं, राइट। एट फर्स्ट 5 ही लोग हैं। एंड जैसे ही लोग जो है पे करते जाते हैं, मोहम्मद एंड रौनक आप यहाँ से कंफर्म करते जाना, हम 5 पीपल से ज्यादा जो है लेने नहीं वाले हैं। एंड बिकॉज ऑफ द टाइम बैंडविथ। एंड बाकी आप बारकोड में से भी पे कर सकते हो, यहाँ से भी आप पे कर सकते हो। इट्स जस्ट 499। एंड अब आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं इस मास्टर क्लास से रिलेटेड, इस पे अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई है या कुछ पेमेंट के रिलेटेड इशू आ रहा है, तो आप अपने क्वेश्चंस जो है आप अपना हैंड रेज कर सकते हो और मैं आपको एक